दो साल से लंबित मासिक मानदेय भुगतान करने में आनाकानी कर रही है सरकार, अब बर्दाश्त नहीं। अध्यक्ष 7 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप-गुट का 5 दिवसीय हड़ताल शुरू। प्रदर्शन। जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 100 आशा हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। लंबित सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप-गुट के कार्यकर्ता मंगलवार से 5 दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर चली गई है। आशा कार्यकर्ता संघ जमालपुर प्रखंड की करीब 100 आशा दीदियों ने मांगों को लेकर प्राथमिकी स्वास्थ्य जमालपुर परिसर में जहां सामूहिक हड़ताल पर बैठ गई, वहीं प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की है। आशा दीदियों की सामूहिक हड़ताल से जमालपुर प्रखंड के करीब 10 पंचायतों में प्रसव, टीकाकरण, वंध्याकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाएं कार्य ठप हो गया है। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व संघ की अध्यक्ष रीता सिंह ने की। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष 2023 में आशा संघ ने करीब 32 दिवसीय हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल से सरकार हिल गई थी और सरकार ने हमारी मांगों में आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटरों को 1000 मासिक मानदेय भुगतान को बढ़ाकर 2500 कर दिया गया। आज 2 साल बीत गया, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। इसलिए सरकार की कथनी और करनी में अंतर के विरोध में 5 दिवसीय हड़ताल किया जा रहा है। सचिव शबनम ने कहा कि सरकार से बढ़ी हुई राशि के साथ 10,000 राशि अतिरिक्त मुहैया कराया जाए। वहीं बीते 6 माह का बकाया मानदेय भुगतान भी किया जाए। इसके अलावा बीते वर्ष का भी भुगतान हो। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ता व फैसिलिटेट को 65 वर्ष में रिटायरमेंट हो तथा रिटायरमेंट पर 10 लाख रुपए भुगतान का प्रावधान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को केंद्र व राज्य सरकारें आपसी तालमेल बैठाकर 21,000 मानदेय भुगतान किया जाए। हेल्थ व वेलफेयर सेंटर से जुड़ी आशाओं व फैसिलिटेट को देय राशि का भुगतान पोर्टल माध्यम से किया जाए सहित अन्य मांगे हैं। मौके पर रानी कुमारी, रीता, किरण कुमारी, सिंधु देवी, रूपम कुमारी, अनिता कुमारी, रेणु देवी, गुंजन देवी सहित अन्य मौजूद थी। The government is reluctant to pay the monthly honorarium pending for 2 years. Now it is not tolerable. President. 5-day strike of Bihar State Asha Workers Union (GOP) group begins over 7-point demands. Demonstration. Health services affected due to strike of 100 Asha workers of Jamalpur Primary Health Center. Workers of Bihar State Asha Workers Union (GOP) group have gone on a 5-day mass strike from Tuesday over 7-point demands including pending ones. About 100 Asha Didi of Asha Workers Union, Jamalpur block sat on a mass strike in the Primary Health Jamalpur premises regarding their demands, and also protested and raised slogans against the policies of the government. Due to the mass strike of Asha Didi, delivery, vaccination, sterilization and other health services have come to a standstill in about 10 panchayats of Jamalpur block. The protesters were led by the president of the union, Rita Singh. She said that last year in 2023, the Asha Sangh had gone on a strike for about 32 days. The government was shaken by this strike, and the government has increased the monthly honorarium payment of Asha workers and facilitators from 1,000 rupees to 2,500 rupees as per our demands. Today 2 years have passed, but the payment has not been made yet. Therefore, a 5-day strike is being organized in protest against the difference between the government's words and actions. Secretary Shabnam said that the government should provide an additional amount of 10,000 rupees along with the increased amount. The outstanding honorarium of the last 6 months should also be paid. Apart from this, payment of the last year should also be made. He said that Asha workers and facilitators should retire at the age of 65 and a provision of payment of 10 lakh rupees should be made on retirement. He said that the central and state governments should coordinate and pay an honorarium of 21,000 rupees to all Asha workers. There are other demands including that the amount due to Asha workers and facilitators associated with health and welfare center should be paid through the portal. Rani Kumari, Rita, Kiran Kumari, Sindhu Devi, Rupam Kumari, Anita Kumari, Renu Devi, Gunjan Devi and others were present on the occasion. के अनुरूप आशा और आशा फैसिलिटेटर के मासिक मानदेय 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया करने संबंधी आदेश अविलंब निर्गत किया जाए। पिछले 6 माह से लंबित मानदेय का भुगतान अविलंब किया जाए और इसके लिए दोषी अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की जाए। पिछला सारा बकाया भुगतान करते हुए पोर्टल व्यवस्था में सुधार किया जाए। रिटायरमेंट की उम्र सीमा
65 वर्ष किया जाए। सेवानिवृत्ति के समय 10 लाख का रिटायरमेंट पैकेज दिया जाए तथा अनिवार्य मानसिक पेंशन की सुविधा दी जाए। आशाओं को विभिन्न तरह के कामों के लिए जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उनका पुनरीक्षण किया जाए। विदित हो कि पिछले 10 वर्षों में इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सम्मिलित विमर्श के आधार पर आशा और आशा फैसिलिटेटर के लिए 21,000 रुपया बेसिक न्यूनतम मानसिक मानदेय निर्धारित किया जाए। कुमारी क्या है यहाँ? आशा कार्यकर्ता हम लोग का 32 दिवस का हड़ताल का क्रम आशा कार्यकर्ता फैसिलिटेटर के मानसिक मानदेय में राशि 1,000 रुपया को बढ़ाकर 25,000 रुपया करने का निर्णय 2,500 रुपया करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें करीब 2 साल बीतने पर भी लागू नहीं किया गया। इस समझौतों को बड़ी हुई राशि को कम से कम 10,000 रुपया के साथ लागू की जाए। इसके साथ ही विभिन्न कार्यों के लिए वर्षों को पूर्व तय राशि केंद्र सरकार के द्वारा करीब 10 साल में कोई पुनरीक्षण बढ़ोतरी नहीं किया गया है। और उसके बाद आज आपका ये हड़ताल है, हाँ सर, कितने दिन का? हम लोगों का 5 दिन का हड़ताल है। हाँ 5 दिवसीय। मांगे कितने मांगे हैं? 7 सूत्री है। 7 सूत्री हाँ। मांगे। एक ऊपर से बताइए ना जो नाम रीता सिंह, क्या है? आशा कार्यकर्ता। हाँ अध्यक्ष है। कौन सा कमेटी है आपका? गोपगुट। अध्यक्ष है आप जमालपुर प्रखंड के।